saying here is any q that you will find, as in q1, q2, q3, जितना भी है, they will be integer multiples of this elementary charge, as in 0.5 multiplied by e, yeah, 2e, and so on and so forth. Any charge that you will find will be an integer multiple, as in integer multiple of this elementary charge, whether it be greater or less than 1, as in see 0.5 multiplied by this elementary charge, या 2 multiplied by this elementary charge. यप. और क्या है, अ चार्ज इज क्वांटाइज्ड. एक क्वांटाइज्ड का क्या मीनिंग होता है भाई? तो बहुत बड़ा लफ्ज है, हमारी तो अंग्रेजी खत्म हो गई. क्वांटाइज से क्या मतलब होता है भाई? क्वांटाइज, इफ यू एवर स्टडीड क्वांटम फिजिक्स, यू नो दैट फोटॉन्स जो होते हैं, एक चीज होती है क्वांटम फिजिक्स में, फोटॉन्स. दे आर डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी. डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी. ये ज़रा एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा. तो व्हाट यू जस्ट नीड टू रिमेंबर इज दैट, जो क्या कहते हैं, जो चार्जेस होते हैं, दे एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट्स लाइक फोटॉन्स, एंड thus they are said to be quantized. ये कौन है भाई? प्लीज, प्लीज, ये नहीं करो यार, ये सब मस्ती नहीं करो यार, प्लीज मस्ती नहीं करो. हाँ, I'll repeat it one more time. Charges exist in discrete packets like photons, thus they are said to be quantized. Quantized is basically photons और quantum physics को relate कर रहा है. जब बड़ा लफ्ज़ है, कोई डरने वाली बात नहीं है. इट्स वेरी सिंपल. न्यूमेरिकल स्टार्ट करवा जाए भाई, करवा रहे हैं सर. शेल थ्योरम, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये भी बकवास कर ये कुछ नहीं है. शेल थ्योरम क्या है? दिस इज बेसिकली द सेम एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. अगर आप लोग को सेंटर ऑफ ग्रेविटी याद है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज वेयर the mass is taken to act for an object. This is the same thing. A shell of uniform charge attracts one or repels a charged particle that is outside the shell, as if all the shell's charge were concentrated at its center. This concept is basically the same as the center of gravity, कि एक चार्ज का जो जितना भी चार्ज होता है, दैट इज टेकन टू एक्ट एट द सेंटर रादर देन इधर, रादर देन इधर या उधर. इट इज टेकन टू एक्ट एट द सेंटर ऑफ द चार्ज. और this is the shell of the charge, and any charge जो है, if a charged particle is located inside a shell of a uniform charge, there is no net electrostatic force on the particle. अगर चार्ज, लेट्स से एक चार्ज पार्टिकल इधर है या इधर है या इधर है, इट इज इनसाइड दिस शेल, दिस सर्कल जो बना हुआ है, दिस शेल, देन देयर विल बी नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. देयर विल बी नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इफ ए चार्ज पार्टिकल इज इनसाइड दिस शेल. और जो है, एक यूनिफॉर्म चार्ज जो है, उसकी जो भी चार्ज है, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉज हो रही है, और उस चार्ज की वजह से, दैट चार्ज इज टेकन टू एक्ट एट द सेंटर, सेम एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. चलो ये कर लेते हैं. इधर देखो, इधर चेक पॉइंट नंबर 2 को देखो. उप्स, मैं, आप प्रोफेसर क्यों नहीं बन जाते हमारे ईएम के? आप पैसे जब से देना शुरू करेंगे, हम आ जाएंगे यार. ये सब हम रट्टा मार लेंगे, आप न्यूमेरिकल्स कराओ. अच्छा यार, करा रहे हैं यार, आप परेशान नहीं हो यार. सब आपकी तरह सुपरमैन नहीं होते ना, सबको थी वो क्या कहते हैं, थ्योरी भी क्लियर करनी होती है. फिगर shows two proton symbol P and symbol P symbol proton 1, proton 2, and an electron. What is direction of electrostatic force on central proton due to the electron? What is the direction on, what is the direction of the electrostatic force on the central proton, on this proton, due to the electron? So you know ke, these are opposite charges, they will attract, so the resultant force in this case should be towards the electron. It should be towards the electron, as in this way, left towards the electron. Here you go, left towards the electron. The electrostatic force B, the electrostatic force on the central proton due to the other proton. And C, the net electrostatic force on the central proton. वे भाई, सब आपकी तरह
Yes, the electrostatic force on the central proton due to the other proton, the electrostatic force on this because of this. So these are like charges. The force will be away from this proton because they are like charges. ये इससे away जाएगा. इधर क्या हो रहा था? It was going towards the electron, but in this case it will be going away from the proton because they are like charges. So it will go towards the left. Towards the left. The net electrostatic force on the central proton. पहले जरा बी का देख लेते हैं. हमारा हमने बी का सही किया. लेफ्ट अवे फ्रॉम द अदर प्रोटॉन. ये देख लो भाई, सही किया हमने. पार्ट सी, द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द सेंट्रल प्रोटॉन. अब नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेन वही रिजल्टेंट फोर्स की बात आ रही है. तो इस प्रोटॉन पे देर आर टू फोर्सेस बीइंग अप्लाइड. इरेजर किधर से आता है यार इसमें? गाँव हाँ हाँ, नहीं पता नहीं इरेज कैसे. अरे नहीं, ये क्या है? हाँ, इरेज इरेज इरेज. चलो यार ये प्लीज सर. हाँ जी. तो देयर वी गो. ओके देयर वी गो. तो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द सेंट्रल प्रोटॉन? नेट एज इन दोनों की वजह से. अभी तक what we had been doing was ignoring one charge and only looking at the other. Now we will be considering both. So you know कि because of this electron force is this way, because of this proton force is this way, net force will naturally be this way towards the left since both of the forces are acting towards the left. Left. Great. In the figure Q1, that आई होप ये सबको समझ आ गया. न्यूमेरिकल सारे कराओगे? यस बॉस, सारे कराएंगे. सब कराएंगे, सब कराएंगे. चलो भाई. In the figure Q1 is equal to Q2 is equal to this. What is the net force on Q from Q1 and Q2? Okay sir. चलो भाई, क्या कर रहे हैं भाई? दिस इज अ, एक आपके पास ये चार्ज है. इस पे जो है ये वाली चार्ज एक्ट कर रही है और ये वाली चार्ज एक्ट कर रही है. अब क्या है कि भाई दीज चार्जेस Q1 एंड Q2 आर इक्वल. ये दोनों बराबर हैं. तो नेचुरली क्या बात है कि भाई जो इस पे जो FQ2 है और FQ1 है, these will be equal. Why are they equal? Because charge तो आपके पास जिस पे एक्ट कर रही है वो सेम है, but the charges due to which there is a force are also same, as in Q1 is equal to Q2. तो since Q1 is equal to Q2, जो their respective resultant forces हैं वो भी equal होंगी. क्योंकि Q1 और Q2 equal है. जो Q1 की वजह से resultant है, जो Q2 की वजह से resultant है, they will be equal. सो अभी तक मैंने कोई नंबर नहीं देखे हैं, कोई मैंने लाइक चार्ज नहीं नोट की है. व्हाट आई कैन टेल यू जस्ट बाय लुकिंग एट दिस डायग्राम इज दैट देयर विल बी नो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट. जो भी रिजल्टेंट है दैट विल बी इन द एक्स एक्सिस. व्हाई डू आई नो दिस? तो व्हाई डू आई नो दिस, हम मुझे इसलिए पता है क्योंकि सिंस ये रिजल्टेंट फोर्सेस सिमिलर सेम है, जो उनके जो क्या बोलते हैं component components है, they will also be the same. They will also be the same. Yes, lovely. They will also be the same. तो FQ2 का अपवर्ड्स जा रहा है वर्टिकल कंपोनेंट और FQ1 का डाउनवर्ड्स जा रहा है वर्टिकल कंपोनेंट. These two are the same क्योंकि their resultants are the same, and since they are the same and they are going opposite directions, they are going to cancel each other out. Again, dynamics का basic concept आ रहा है इधर. These two forces are the same and going in opposite directions, so they will cancel each other out. ये चीज, this makes it a lot easier for us क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कंसिडर करना है. आई होप सबके पास कैलकुलेटर हो. अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं. तो अगेन लेट्स लुक एट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स नाउ. तो अगेन वही बेसिक फार्मूला यूज हो रहा है, K Q1 Q2. जगह खत्म हो गई. K Q1 Q2
ग्रुप मीटिंग से मीटिंग आईडी कहाँ से आती है भाई? मीटिंग आईडी किधर से आएगी? आई डोंट नो भाई, मुझे भी नहीं पता। अब आई डोंट, हाउ डू आई रिटर्न टू मीटिंग ऑन, क्या? चलो भाई, जारी रखो, चलो चलो, लेट्स इग्नोर, चलो मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड, सॉरी सॉरी सॉरी। तो हाँ जी, इधर वही बेसिक फार्मूला यूज हो रहा है, के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला जो कि हम इस पूरे चैप्टर में यूज करेंगे। एक यही फार्मूला है और कोई फार्मूला नहीं है, तो यही फार्मूला यूज होगा। तो नाउ वी आर लुकिंग एट द रिजल्टेंट, सॉरी, वी आर लुकिंग एट द एक्स कंपोनेंट। What we know, what we will get from using this formula is the resultant force. As in, let's say, let's consider what इधर देखते हैं उन्होंने क्या किया। FQ1 is equal to Q2, QQ, same formula, same formula. दिस इज के, उन्होंने के की वैल्यू इनपुट की और फिर उन्होंने क्या किया, दे जस्ट इनपुट दी चार्जेस। 4 × 10⁻⁶, विच वाज बड़े क्यू की वैल्यू, 2 × 10⁻⁶, विच वाज छोटे क्यू की वैल्यू। सो वी हैव Q1Q फ्रॉम हियर, एंड देन वी हैव द डिस्टेंस एज इन द रेडियस, जो कि ये है, this is 0.5. We just did this, we just did that. So yep, okay, okay, yep, we just did that. So इधर से हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास क्या कहते हैं, रिजल्टेंट आ गई। दिस इज दीज फोर्सेस। इधर से हमारे पास क्या आ रहा है, वी आर गेटिंग दिस फोर्स, क्योंकि कीप इन माइंड वी हैव नॉट पुट एनी साइन और कॉज एज ऑफ येट। अभी तक आई इरेज दिस, मेसी हो गया भाई, इरेज कर दो। क्या लिख रहे हो? इसको सर प्लीज सर इरेज, बॉस। हाँ जी, तो सिंस इफ यू कैन नोटिस एनीथिंग हियर, वी हैव नॉट यूज्ड एनी साइन और कॉज एज ऑफ येट। इसका भाई ये प्लीज जरा इस लाइन को हटा दो, जिसने भी की है, मुझे आता नहीं है। थैंक यू। तो एज ऑफ येट वी हैव नॉट यूज्ड एनी साइन और कॉज, कहीं भी साइन और कॉज यूज नहीं हो रहा। अभी जो हमने किया है, व्हाट वी हैव डन इज वी हैव gotten the magnitude of this force and uh, this force. We just plugged in the values from the question into this formula to get the resultant force. Now what we will do is, as in we got these respective forces, हमारे पास दो forces आई हैं. Now what we need is the resultant of these two forces. What we need now is the resultant of these two forces. So इनका y component visibly एक दूसरे को cancel कर रहा है, makes things easier. We only need to look at the x component. For the x component, what we will do is cos theta. I hope you guys know that. So f, which is what इधर किया हुआ होगा ना, yes, f cos theta. We just plugged in the values to get 0.23. This is the x component. 0.23 is the x component of one of these forces. I'm sure you're right, but the 0.23 is the x component of one of these forces, and what we have, sir, please, यार बहुत आप जरा डिलीट कर दो इसको, थैंक यू थैंक यू। 0.23 is the x component of one of these forces, and we have two of these forces जिनका x, and if you notice इनका although y component opposite जा रहा है तो कैंसिल हो गया, इनका x component सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इन दोनों का x component एक ही तरफ जा रहा है, तो इन दोनों का x component ऐड होगा। एंड सिंस their resultant forces are the same, their क्या बोलते हैं, components will also be the same, and since we have gotten the component x component of 1, which is 0.23, हमें दूसरे के लिए ये सारा cos थीटा करने की जरूरत नहीं है। What we can simply do is multiply it by 2, क्योंकि अल्टीमेटली हमने क्या करना है, हमने इसका x component निकालना है
हमने इसका एक्स कंपोनेंट निकालना है और इसमें ऐड कराना है, और हमें क्या पता है कि इट विल बी द सेम एज दिस 0.23। हमने वेरी सिंपली इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, एंड यही चीज़ उन्होंने इधर किया, देख लो। क्या कहते हैं, समीशन ऑफ एफ वाई एज इन दिस इज, ये समीशन होता है, दिस इज समीशन। क्या कहते हैं, वर्टिकल में कोई रिजल्टेंट नहीं है तो रिजल्टेंट इज 0। इधर हमने मल्टीप्लाई बाय 2 किया फॉर हॉरिजॉन्टल, तो इट इज 0.4x। सर अगर आप प्लीज इसको इरेज कर देते तो। रिपीट प्लीज, यस रिपीट कर देते हैं, कोई मसला नहीं है, शुरू से। आई इरेज दिस अगेन। एक जरा जल्दी से समरी दे देता हूँ इस चीज़ की। There is a charge Q, there is a charge Q1 and Q2 which are exhibiting forces on this Q charge. इन Q1 का रिजल्टेंट है FQ1, Q2 का रिजल्टेंट है FQ2। Q1 and Q2 are the same, their distances are the same, the angles between them are the same. Naturally, their resultant as in FQ1 and FQ2 will also be the same. Using this KQ1 Q2 formula, and by plugging in either of these charges, but they're the same, so it's the same thing. So by plugging in these two values and the value of the resistance, I mean radius and the K constant ki value, we will get the resultant force ki value. Resultant force, sorry, electrostatic force. And then we will break it into इस resultant force को हम उसकी components में break करेंगे, y and x। y and x इधर आप देखो तो y कंपोनेंट में सेम चीज़ें ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो they'll get cancelled। Then what we did was, using the resultant force that we got, we used f cos theta with theta, we used, we used f cos theta we used f cos theta to get the horizontal component of these forces, and since there were two forces which were the same, उनका horizontal component भी same है। Naturally जो एक का horizontal component आ रहा है, it will be multiplied by 2। again multiply by 2 क्यों होगा, क्योंकि दो resultant forces हैं और दोनों का x component same direction में same magnitude से जा रहा है, तो एक का magnitude को अगर हम multiply by 2 करेंगे, you will get the resultant in the x direction। in this case is 0.46। 0.46। आई होप ये वाला न्यूमेरिकल सबको समझ आ गया। सबको समझ आ गया तो फैल बेटा यहाँ क्या कर रहा है? फादर ऑफ टू, ये क्या हो रहा है भाई? डॉक्टर इरफान, मैं कुछ बोलूंगा नहीं अगर ये असल में डॉक्टर इरफान निकल ले मेरी तो। खैर, सबको समझ आ गया। वाई यूज माइनस 0.29, 0.2 व्हाट, मैं समझा नहीं। एनी क्वेश्चंस? व्हाट आर द क्वेश्चंस, प्लीज टेल मी द क्वेश्चंस। व्हाई आर वी टेकिंग डिस्टेंस? ग्रेट क्वेश्चन। ये जो फॉर्मूला है, आई जस्ट, सर थैंक यू मैन फॉर द हेल्प यार। क्योंकि हम डिस्टेंस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इस फॉर्मूले में रेडियस आता है डिनोमिनेटर में, एंड रेडियस हियर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, एज इन डिस्टेंस बिटवीन दिस क्यू चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस क्यू चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस क्यू वन चार्ज। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज द रेडियस विच इज बीइंग यूज्ड इन दिस फॉर्मूला। दैट इज वाई वी आर टेकिंग डिस्टेंस। नहीं, कॉस थीटा में 0.4 और 0.5 जो लिया है, कहाँ लिया है भाई? यार आप जरा प्लीज ये इरेज कर दो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा ये पूछ रही हो आप, ये हमने ये डिस्टेंस नहीं लिया ये। हाँ, गुड क्वेश्चन, आई ग्लैड यू ब्रॉट दैट टू माय अटेंशन, आई वाज अबाउट टू स्किप ओवर दैट। हाँ जी, तो वैसे कॉस थीटा की जगह, कॉस इधर थीटा की जगह एक एंगल आता है, बट इधर आप देखो तो वी हैव नो एंगल्स गिवन, कहीं भी कोई भी एंगल नहीं है। आई एम श्योर आप सबको जरा इरेज करूँ जरा। इधर कहीं भी कोई एंगल नहीं गिवन, तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे इधर? जरा एक मिनट, सॉरी। सॉरी। यस, तो आपके पास इधर कोई एंगल गिवन नहीं है, तो आप थीटा की जगह क्या डालोगे?
ऑल्दो, अच्छा चलो, ऑल्दो हमारे पास, यार जरा प्लीज अगर इसको इरेज कर देते तो थैंक यू यार, थैंक यू थैंक यू। तो हाँ, हमारे पास इधर कोई एंगल गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? यूजुअली कौन सा एंगल लगेगा? ये वाला एंगल लगेगा, ये वाला एंगल लगेगा। बट ये एंगल हमारे पास गिवन ही नहीं है। तो कॉस थीटा, कॉस थीटा इन रिस्पेक्ट टू दिस ट्राइंगल, ये जो ये वाला ट्राइंगल है, ये जो ये वाला ट्राइंगल जो बना हुआ है, तो ऑल्दो हमारे पास थीटा नहीं है, वी हैव दी लाइक द रेशियो, द यू नो कि कॉस थीटा इज इक्वल टू योर बेस अपॉन योर हाइपोटेन्यूज, राइट? तो ऑल्दो हमारे पास थीटा नहीं है, हमारे पास पूरे कॉस थीटा की वैल्यू है विच इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 0.4 अपॉन 0.5, यही चीज उन्होंने इधर की है। सिंस हमारे पास थीटा नहीं था, हमने पूरे कॉस थीटा इटसेल्फ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो लाइक यस, यही किया है। तो थीटा नहीं है, तो हमने पूरे कॉस थीटा इटसेल्फ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी ट्राइंगल से, विच इज 0.4 अपॉन 0.5। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके अंडरस्टूड, चलो ग्रेट हो गया बॉस। और कोई क्वेश्चन? दैट वाज अ गुड क्वेश्चन, अच्छी बात है। और कोई क्वेश्चन? सबको समझ आ गई ये वाला न्यूमेरिकल? सर थोड़ा फास्ट पढ़ाएं। यस बॉस, जैसा आपको, थोड़ा फास्ट पढ़ाएं। शायरी तक पढ़ाएंगे। आप बैठो अभी, अभी टाइम है जरा, कल संडे है, सब घर पे ही होगे। बताओ भाई, सबको समझ आ गया? न्यूमेरिकल आ गया समझ सबको? प्लीज, आई नीड येसेस, आई नीड एक्नॉलेजमेंट्स, कुछ भी। यस, नो, समथिंग, एनीथिंग। जी, आ गया। यस, आ गया। कोई भी क्वेश्चन, एनीबडी? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है, चलो वी आर मूविंग फॉरवर्ड। ओ भाई, ये तो भारी पड़ी, ये तो भारी न्यूमेरिकल आ गया, ये कैसे करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में क्या करा है? नेक्स्ट स्टेप कौन सा नेक्स्ट स्टेप? जीरो कैसे आया जीरो? यार जीरो इधर देखो, जीरो ऐसे आया कि हियर यू आर टॉकिंग अबाउट द वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट में क्या सीन है कि वाई कंपोनेंट में क्योंकि अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स इक्वल था, दोनों कैंसिल होंगे, कैंसिल होंगे मतलब देर इज नथिंग। नथिंग एज इन जीरो, नथिंग एज इन जीरो। जीरो, जीरो मतलब नील, कुछ भी नहीं है। वाई एक्सिस में कोई रिजल्टेड नहीं है, इसलिए इसलिए ऐसे हमारे पास इधर जीरो आया है। अगर एफ आई कैंसिल ही हो जाना है तो फिर हम वो मेंशन नहीं करेंगे कैलकुलेशंस में। आपको जो करना है आप मेंशन करो कैलकुलेशन में, मुझे नहीं पता। मैं बस आपको बता रहा हूँ कैसे होता है। मैं चेक नहीं करूंगा आपका काम, ना ही मैं पेपर बनाता हूँ, इतना नहीं पता मुझे। आप कर तो आप दिखा दो कैलकुलेशंस में कि, आई गेस दिखाना ही होगा कि कैंसिल कैसे हुआ है। जैसे इन्होंने किया हुआ माइनस एफ साइन थीटा प्लस एफ साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, तो आई गेस ऐसे। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। मुझे मुझे बाहर जाना है, जल्दी पढ़ा दो सर, रिकॉर्ड सब हो रहा है, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। रिकॉर्डिंग के बाद भी कोई सवाल हो तो सर आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज कर लेना। अंडरस्टूड, चलो ग्रेट, सबको समझ आ गया। वी आर मूविंग फॉरवर्ड। चलो जी, फाइंडिंग द नेट फोर्स ड्यू टू टू अदर पार्टिकल्स, फिगर 221-8a, दिस फिगर राइट हियर shows two positively charged particles fixed in place on the x-axis. Positively charged particles fixed on the x-axis. Charges q1 इसकी value given है, q2 इसकी value given है, particle separation r भी given है. What is the magnitude and the direction of the, or what are the magnitude and direction of the electrostatic force F12 on particle 1 from particle 2? Very easy question. और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछी हुई है, देर आर नो वेक्टर्स इन्वॉल्व, देर इज नो एक्स वाई कंपोनेंट। बहुत सीधा सीधा आपने क्या करना है, आपके पास आपका फेवरेट फॉर्मूला कि Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, यही एक फॉर्मूला है जो यूज होगा पूरे चैप्टर में, ये हमारा फेवरेट फॉर्मूला है। के की वैल्यू है Q1 आपके पास ये रहा, Q2 आपके पास ये रहा, ये रहा आर आपके पास ये रहा। आपने वैल्यूज इनपुट की, आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया। नाउ डायरेक्शन, दीज आर लाइक चार्जेस, जो क्यू, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑन पार्टिकल 1 फ्रॉम पार्टिकल 2? These are like charges, the resultant will be away from the particle, so towards the left. ये मैं साइन क्यों
क्या वाई में माइनस साइन क्यों लिया था यार? वाई में माइनस साइन क्यों लिया था? सॉरी गाइस जरा। एक क्योंकि एक ऊपर की तरफ जा रहा है दैट इज पॉजिटिव, एक नीचे की तरफ जा रहा है दैट इज माइनस। प्लस माइनस हो रहा है इधर इधर। एक्स में प्लस प्लस था, वाई में प्लस माइनस है, तभी कैंसिल हो रहा है। पूरे चैप्टर में बस यही फॉर्मूला यूज हो रहा है ना? यस, अभी तक नहीं, पूरे चैप्टर में यही एक फॉर्मूला है। ये हमारा फेवरेट फॉर्मूला और यही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में। ए पार्ट सबको समझ आ गया? ए पार्ट सबको समझ आ गया? यस। आई नीड मोर यसेस। 24 लोग हैं कॉल में, दो का जवाब आया है। 20 लोग। यस। चलो ग्रेट। ये ही इन्होंने ये चीज की, वेट इज पुश्ड अवे फ्रॉम पार्टिकल टू, यही चीज उन्होंने बताई, वेट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये हाँ, इन्होंने ए पार्ट का इनके सॉल्व हुआ हुआ है, मैंने सॉल्व नहीं किया। टाइम शॉर्ट है। टाइम इज शॉर्ट। बी पार्ट। फिगर 21.8 सी, ये वाला फिगर is identical to figure 21.8 if particle 3 now lies on x-axis between particle 1 and 2. It is between particle 1 and 2. C and is a distance 3/4 r from particle 1 was the net electrostatic force F net on particle due to particle 2 and 3. Okay. A की वैल्यू 9 एक्सपोनेंट 9 होती है ना? यस। सर मुश्किल क्वेश्चंस करवाएं। यस बॉस, अभी करा रहे हैं। जब मुश्किल क्वेश्चन आएगा मैं आपसे सवाल पूछूंगा। अबे यार, ज्यादा ज्यादा आई गॉट टू इमर्स्ड इन द रूल्स ऑफ माय टीम। चलो खैर। चलो ये पूछ रहे हैं क्यू थ्री पे रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी। तो व्हाट वी नो इज, किधर गया? हाँ, क्यू थ्री पे रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? सो क्यू थ्री इज माइनस, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी ए resultant force on q3 due to q1, and that will be towards this direction क्योंकि like charges है, it will be towards the particle, and again q2 which will be like this, and ये यही बताया हुआ है। We can call this force F12, we can call this force F13। uh, F particles 2 and 3। नहीं सॉरी, अरे आई मिसअंडरस्टूड द क्वेश्चन, वेरी सॉरी। मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। uh, my fault, let's do that again। What is the net electrostatic force on particle 1 due to particles 2 and 3? मैंने जरा क्वेश्चन Q3 को सब्जेक्ट बना लिया था। Q1 we have to get the resultant force on Q1। तो सबसे पहले तो there will be a force due to Q3 which is going this way, and there will be a force due to Q2 which is going this way। 8 मिनट रहते हैं भाई मीटिंग में, ग्रेट। एक फोर्स राइट की तरफ जाएगी which is due to the electron which is pulling it towards itself। एक फोर्स जाएगी लेफ्ट की तरफ which is due to the proton pulling it, I mean pushing it away। यही चीज बताई हुई है। तो अगेन वही चीज करनी है, k q1 q2 over r square। इधर जो उन्होंने 3/4 r बोला हुआ है। अच्छा, तो आपके पास पार्ट ए से आपके पास जो है रिजल्टेंट फोर्स थी, यू हैड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ये आपके पास लाइक आपने पहले निकाली हुई थी। इस पार्ट में सिर्फ क्या करना है, यू हैव टू गेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3। 3/4 r सम, कोई कंफ्यूज होने वाली चीज़ नहीं है। 3/4 इंटू r 0.02 दिस एंड देन होल चीज़ का स्क्वायर। 3/4 r को आप ऐसे इंटरप्रेट करोगे, इट इज 3/4 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। दिस इज हाउ यू विल राइट इट। ऊपर आपके पास वही चीज आएगी, k q1 k q2 over r square। तो with this you will get the resultant force that is because of Q3, and that will be opposite direction में होगी ना। इट विल बी इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन। जो Q2 अगर लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो Q3 की वजह से जो फोर्स है वो राइट पे जाएगी। आपने इन दोनों को फिर माइनस कराना है। ये देख लो, F13 आपके पास ये चीज आ गई, द नेट फोर्स। तो F13 आपको ये चीज आ गई, F1 नेट। लंबी चौड़ी उन्होंने यही किया है। इन्होंने F13, इन्होंने क्या कहते हैं F13 एज इन, इरेज कहाँ से, F13 एज इन ये वाली फोर्स निकाली। F12 आपने पहले निकाली हुई थी, यू न्यू व्हाट इट वाज, आपने F13 निकाला, F12 में से माइनस करा दिया। देयर वी गो।
आई होप ये बी पार्ट सबको समझ आ गया। इसे छोड़ो, प्रॉब्लम्स की न्यूमेरिकल सॉल्व कर, पहले आसान तो करने दो बहन। बी पार्ट सबको समझ आ गया। कम ऑन, आई नीड यस नो यस। बाकी कोई भी, 17 लोग हैं। यप, बी पार्ट सबको आ गया। बी पार्ट आ गया, बी पार्ट आ गया। मोर, कम ऑन कम ऑन, 17 लोग हैं, दो का जवाब आया है, यस यस, ओके गुड, ग्रेट। चलो मूविंग ऑन टू पार्ट 3। आइडेंटिकल अगेन Q4। What is the net electron reports F1 net on particle 1 due to particles 2 and 4? सबसे पहले तो आपने क्या करना है, यू हैव टू फिगर आउट द डायरेक्शंस ऑफ द फोर्स। तो Q2 की वजह से इस तरफ जाएगी, इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, इट विल बी अवे। Q4 की इस तरफ जाएगी, इट विल बी ए, क्या बोलते हैं, इट इज अ इलेक्ट्रॉन, इट विल बी टुवर्ड्स द चार्ज। नाउ दिस अगेन इट इज अ वेक्टर। तो इसका एक एक्स कंपोनेंट होगा, इस आई I मीन इसका एक वाई कंपोनेंट होगा, इसका एक एक्स कंपोनेंट होगा। एक्स वाई कंपोनेंट का क्या है, मैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि टाइम लगे, 10 बजने वाले हैं। इसका जो एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट में दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, वन इज गोइंग टू द लेफ्ट, वन इज गोइंग टू द राइट। क्या कहते हैं, लेफ्ट, इन दोनों को माइनस कराओगे, इन दोनों को माइनस करा कि यू विल गेट अ रिजल्टेंट इन द एक्स डायरेक्शन। और फिर सिंस देर इज नो अदर फोर्स, देर इज ओनली वन फोर्स इन द वाई डायरेक्शन, जो वाई का रिजल्टेंट है वो इसका वाई कंपोनेंट ही होगा। इससे आपके पास एक एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, एक वाई कंपोनेंट आ जाएगा। वही चीज़ करनी है जो आपने पहले की थी, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस से एंगल, वही चीज़ है, हमने अभी अभी पढ़ी थी। आई होप पार्ट 3 सबको आ गया। ऐड नहीं हो रहे, ऐड नहीं होंगे सर, क्योंकि ये दोनों जो हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप Q2 को देखो, Q2 की जो फोर्स है वो लेफ्ट की तरफ जा रही थी, और जो Q4 की जो फोर्स है वो राइट की तरफ जा रही थी, देर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऐड ये तब होते जब ये दोनों राइट या दोनों लेफ्ट जा रहे होते, बट सिंस वन इज गोइंग राइट दी अदर इज गोइंग लेफ्ट, तो ये माइनस होंगे। पार्ट 3 सबको समझ आ गया। पार्ट 3, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस, कम ऑन, एनी क्वेश्चंस, टाइम शार्ट है प्लीज, काइंडली रिपीट। यस बॉस, अभी करते हैं रिपीट। अगेन, याद करो आपने इधर क्या पढ़ा था। हाँ नहीं, इधर नहीं, आपने इधर क्या पढ़ा था, इधर आपने क्या पढ़ा था, आपने क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का क्या पढ़ा था आपने, tan थीटा का क्या पढ़ा था। इस कॉन्सेप्ट को जरा रिकॉल करो, दिमाग में बैठाओ। दिमाग में बैठाया, नाउ अगेन वी आर गोइंग बैक टू पार्ट 3। पार्ट 3, इधर वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। Q1 पे जो है, देर आर टू फोर्सेज, वन इज बिकॉज ऑफ Q2, द अदर इज बिकॉज ऑफ Q4। Q2 की जो फोर्स है, दैट विल बी, सॉरी, दैट विल बी लाइक दिस, क्योंकि इट इज ए प्रोटॉन, इट विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल। Q2 से लाइक दूर जाएगा, so it will be towards the left, and Q4 it is an electron, so it will be towards the charge particle, so it will go like this. अब Q4 का क्या है, since it is a vector, there is an angle here, there will be a y component and there will be a x component। सही है। आप इधर अगेन क्या करोगे, Q1 Q2/r², हमारा फेवरेट फॉर्मूला, आप पहले ये लगाओगे। इससे आपके पास रिजल्टेंट की वैल्यू क्या। यस, आप हैंड रेस कौन कर रहा है, माइक ओपन कर लो सब, मैं लीव कर दूंगा भाई फिर। अब आप फिर आपस में गपशप लगाना, हम लीव कर देंगे। भाई टाइम स्टार्ट है, जरा मीटिंग दोबारा एंड होने वाली है तो। हाँ जी, तो ये इधर आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले से आप वही चीज़ करोगे जो आपने ऊपर की थी। आप एक ये इस रिजल्टेंट की वैल्यू निकालोगे, आगे बार रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, फिर कॉस थीटा साइन थीटा लगा के आप जो हो, क्या कहते हैं, इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगाओ, निकाल लोगे। बट यू डोंट हैव टू डू जो पीछे इधर लंबी कहानी थी, जो कि आपने ये पूरा कॉस थीटा को पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी, इधर आपको सिंपली
थीटा की वैल्यू प्लग इन करनी है विच इज 60। तो यूजिंग cos थीटा sin थीटा यू विल गेट द कंपोनेंट्स, you will get the components, vertical and horizontal components. अब now you want the resultant in both components. आपको x कंपोनेंट का रिजल्टेंट चाहिए, y कंपोनेंट का रिजल्टेंट चाहिए। एक्स कंपोनेंट में रिजल्टेंट कैसा आएगा, देर आर टू फोर्सेज एक्टिंग, वन इज टूवर्ड्स द लेफ्ट, वन इज टूवर्ड्स द राइट, इन दोनों को माइनस कराओगे तो आपके पास रिजल्टेंट आएगा। एक 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 वाई कंपोनेंट में सिर्फ एक ही फोर्स है विच इज गोइंग ऊपर की तरफ, तो वाई कंपोनेंट का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट नहीं होगा, वो वाई कंपोनेंट ही होगा, सिंस देयर इज ओनली वन वन फोर्स। आपके पास एक्स कंपोनेंट आ गया, अगर वाई कंपोनेंट आ गया, आपने पाइथागोरस थ्योरम से रिजल्टेंट निकाला एंड देन यूजिंग tan थीटा यू गॉट द एरो, यू गॉट द आई मीन डायरेक्शन। चैप्टर 1 खत्म होगा तो शुरू होगा चैप्टर 2। यस, सबको समझ आ गया, सबको समझ आ गया, सबको समझ आ गया होपफुली। बताओ, सबको समझ आ गया? सबको समझ आ गया? नो, भाई मस्ती नहीं करो प्लीज।